یا نافائدہ وہ اس نظر سے کہ یہ آئین جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اہمیت رکھتی ہے اتنا اہمیت وہ JUI کے لیے. اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب جتنا شکریہ ادا کر سکتا ہوں وہ ناکافی. انشاءاللہ تعالی ان کا رول تاریخ یاد رکھے گا کہ جس طریقے سے اس پورے عمل میں ہم نے یہ کنسنسس پیدا کر کے محنت کر کے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے کہ ایک اتفاق رائے سے انشاءاللہ تعالی آئین سازی چل رہا ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے پارٹی کے سینیٹرز کو ہدایات دیے ہیں کہ وہ پہنچے اور ہمارا سینٹ کے اجلاس میں حصہ رکھے. میں نے بھی ابھی اپنا پارلیمانی پارٹی میٹنگ کا اجلاس میں جانا ہے. میں ایک دو سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. سر پینل والا مسئلہ بتائیے. ایک منٹ مطیع جان صاحب اتنا جذباتی ہے اس ایشو پہ، آپ اس کو موقع دیں کہ مجھے مطمئن. میں کسی کو زور اور زبردستی سے مطمئن نہیں کر سکتا ہوں، مگر ہمیں اب یہ اس چیز کو پاکستان کی معاشرے میں قبول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے. ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے رائے رکھے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ایک دوسرے کی دشمن ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی ہے. ہر کسی کا حق ہے کہ اختلاف رائے ہو. میں چاہے وہ مطیع جان صاحب ہو یا جو بھی ہو، میرا کوشش ہوگا کہ ذاتی حملوں کے بجائے، ذاتی کردار کشی کے بجائے میں ان کا دماغ، ان کا ذہن اپنا دلائل سے، اپنا آرگیومنٹ سے قائل کرنے کی کوشش کروں گا. نہیں کیا تو اب اتنا آزاد معاشرہ ہونا چاہیے کہ ان کی مرضی میری مرضی. تو اتنا آپ موقع دے مطیع جان صاحب کو کہ وہ اپنا جو ایک سوال کرنا ہے تو پورا اور اچھا انداز سے کریں. سر تھینک یو. سر جو پینل والا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا یا 25 اکتوبر کے بعد تک کا معاملہ چلا جائے گا؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے؟ نوٹیفکیشن جاری ہوگا؟ جہاں تک آپ کی پینل کی پوائنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ چیئرمین ایک پاکستان مسئلہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہا گیا کہ آپ سب کو 26ویں آئینی ترمیم کا دن مبارک ہو. اس ترمیم میں کوئی متنازع پوائنٹ اب نہیں بچا ہے. انہوں نے اپنی گفتگو میں ایسا کہا کہ آج میں نے مولانا سے فون پر رابطہ کیا. مولانا کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ ناکافی ہے. یہ ایوارڈ صرف میرا نہیں، یہ ہے ان سبھی خوبصورت چہروں کہ آپ ایک دوسرے کی دشمن ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی ہے. ہر کسی کا حق ہے کہ اختلاف رائے ہو. میں چاہے وہ مطیع جان صاحب ہو یا جو بھی ہو، میرا کوشش ہوگا کہ ذاتی حملوں کے بجائے، ذاتی کردار کشی کے بجائے میں ان کا دماغ، ان کا ذہن اپنا دلائل سے، اپنا آرگیومنٹ سے قائل کرنے کی کوشش کروں گا. نہیں کیا تو اب اتنا آزاد معاشرہ ہونا چاہیے کہ ان کی مرضی میری مرضی. تو اتنا آپ موقع دے مطیع جان صاحب کو کہ وہ اپنا جو ایک سوال کرنا ہے تو پورا اور اچھا انداز سے کریں. سر تھینک یو. سر جو پینل والا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا یا 25 اکتوبر کے بعد تک کا معاملہ چلا جائے گا؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے؟ نوٹیفکیشن جاری ہوگا؟ جہاں تک آپ کی پینل کی پوائنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ چیئرمین ایک پاکستان مسئلہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہا گیا کہ آپ سب کو 26ویں آئینی ترمیم کا دن مبارک ہو. اس ترمیم میں کوئی متنازع پوائنٹ اب نہیں بچا ہے. انہوں نے اپنی گفتگو میں ایسا کہا کہ آج میں نے مولانا سے فون پر رابطہ کیا. مولانا کا جتنا شکریہ. انشاءاللہ تعالی آج پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں اپنا ایک بہت اہم ذمہ داری ادا کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس ملک کی آئین سازی کا جو عمل ہے، جو کہ میرے خیال میں، میری نظر میں
हमारा सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। उस सिलसिले में हम अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो किए गए वादे थे, जहां तक जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है, हम उनको मुकम्मल करने जा रहे हैं। सियासी तौर पे, ज़ाती तौर पे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं अपनी वालदा की नामुकम्मल मिशन की एक नुक्ता इंशाअल्लाह ताला पूरे करना जा रहा हूं। और इसका जो खुशी की बात है कि इस तंग मुश्किल सियासी सूरत हाल में, सियासी स्पेस में हम इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के थ्रू, जो कि हमारा ट्रेडिशन रहा है, उस तरीके से ये आइन साजी करने जा रहे हैं। और उस सूरत में जहां इस बिल के कंटेंट पे अब ना कोई एतराज रहा है, ना कोई मुतनाज़ा पॉइंट रह चुका है, ऑपोजिशन और हुकूमत की जो जमातें डायलॉग में इंगेज थे, उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज अग्री कर चुके हैं। और जब उस तरीके से आइन साजी होता है, इसके कॉम्प्रोमाइज अपनी जगह, जो जमातें शायद इस पे वोट ना दें आज, अपने सियासी नुक्ते नज़र की वजह से, वो भी इस बिल के कंटेंट पे इंशाअल्लाह ताला वोट भले ना भी दे, इस बिल के कंटेंट पे उनका ऐसे एतराज नहीं होना चाहिए, जबकि उन्होंने ऑलरेडी मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इत्तेफाक बना, उसको इंडोर्स कर लिया है। तो ये एक तारीखी दिन है। आज मैंने मौलाना फजल रहमान से फ़ोन पे राब्ता किया, शुक्रिया भी अदा किया कि जिस तरीके से अपोजिशन में होते हुए, एक होता है आप हुकूमत में हैं, हुकूमत में होते हुए, ट्रेजरी बेंचेस पे होते हुए समझ में आता है जिस तरीके से मैं मौलाना फजल रहमान साहब JUI ने इस अमेंडमेंट पे काम किया, उस लिहाज से नहीं कि वो किसी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे, वो इस लिहाज से नहीं कि उनकी अपनी कोई सियासी फायदा या ना फायदा, वो इस नजर से कि ये आइन जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अहमियत रखती है, उतना अहमियत वो JUI के लिए। और मैं मौलाना फजल रहमान साहब जितना शुक्रिया अदा कर सकता हूं वो नाकाफी। इंशाअल्लाह ताला उनका रोल तारीख याद रखेगा कि जिस तरीके से इस पूरे अमल में हमने ये कंसेंसस पैदा करके, मेहनत करके इस पॉइंट पे पहुंच चुके कि एक इत्तेफाक राय से इंशाअल्लाह ताला ये मुझे दोनों माइक मुझे दे जरा के बताने चाहिए। आपके चेहरों पे हकीकी मुस्कुराहट नजर आ रही है बिलावल जैसी। لا چې دا کنه ما دې پرونه لغوي کنه و چې ټول لارې کې بيسي ده د قدم باندې پلیز کې سنو په चलो भाई शुरू कर लो। पीछे यार थोड़ा पीछे अगर भाई थोड़ा सा इधर हो जैसा कैमरे में नहीं आ रहे प्लीज। ठीक है जी 10 बताओ सही
positive خبر هو أخبركم طولي بسم اللہ بس ریڈی ہیں خاموشی پلیز ریڈی ہیں سارے اوکے بس اوکے اچھا سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاف ہمارے الائنس سنی اتحاد کونسل اور علامہ راجہ ناصر صاحب ہم مولانا صاحب کے گھر پہ آئے تھے. ہمارے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے بڑے عرصہ سے شروع ہے. آئین میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس کے سلسلے میں ہم سارے مولانا صاحب کے رول کا جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا ہے اس سارے پروسیس میں, جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمیں ایکوموڈیٹ کیا ہے, جس طریقے سے مولانا صاحب نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے, جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمارے درد دکھ کو اپنا سمجھ کر کے رول پلے کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے میں اور ہمارے سارے ورکر سپورٹر مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں. آئین میں ترامیم ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. پاکستان تحریک انصاف اس سنجیدہ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ بات واضح کر چکی ہے کہ ہمارے چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب ہے جو پہلے بھی چیئرمین تھے, آج بھی چیئرمین ہیں, کل بھی انشاءاللہ چیئرمین رہیں گے. ہم نے ہر فیصلہ چاہے اس کی ابتدا کرنا ہو چاہے اس کا انتہا کرنا ہو وہ صرف اور صرف خان صاحب کے مشورے کے ساتھ ہم کرتے ہیں, ان کے رضامندی کے ساتھ اور ان کے ہدایات کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں. آج بھی ہم نے حکومت مسودے پہ غور کیا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے جو کل ڈائریکشن ہمیں دی تھی جس کے نتیجے میں خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں پہلے اپنے پارلیمان اور اسمبلیوں میں اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ ملاقات کروں گا, ہم اور مزید کنسلٹیشن کریں گے تو اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم نے اس بل پہ اپنا پورا موقف دینا ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کو نہیں سپورٹ کرنا. پاکستان تحریک انصاف ایک اصولی موقف لے چکی ہے. جس طریقے سے اس بل کو مو کیا گیا, جس طریقے سے اس کو پروسیس کیا گیا, جس طریقے سے کمیٹیوں میں گزارا گیا, جس طریقے سے بار بار ٹائم چینج کیے گئے, جس طریقے سے ہمارے منیز اور سینیٹر کو ہراساں کیا گیا, اٹھایا گیا, اس کی ہم نے شدید مذمت کی ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے اس سے کہ ہماری طرف سے اس پہ کوئی ورشن ہو, ہمارے منیز اور سینیٹر ہمارے پاس واپس آ جائیں. آج مولانا صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ہمارا ایک طویل نشست رہا ہے. ہم نے اور مولانا صاحب کا ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح رہے گا. لیکن جہاں تک آج 26ویں ترمیم پہ ووٹنگ کا تعلق ہے تو آج پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت معتقد ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس بل پہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے سکتی. پاکستان تحریک انصاف اس پروسیس میں تو شریک رہی ہے, باوجود اس کے کہ ہماری اسمبلی پہ اور طریقہ کار پہ شدید احتجاج رہا ہے, تحفظات رہے ہیں. لیکن آج جو ووٹ ہونے جا رہا ہے ہم اپنا موقف اسپیچ کریں گے, اس کے پورا پروسیس اسمبلی کے فلور پہ بتائیں گے, لیکن ہم 26ویں ترمیم کے بل کے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मोतक़िद हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है यही हमारा फैसला है। जी प्लीज। मैं अपनी बात भी करूंगा और गौहर खान साहब की उर्दू जो है ना जी वो ज़रा उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर सकूंगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहां तक उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुंचे हैं। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी पीटीआई से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक बनता है। लेकिन चूँकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है और जाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा, आपने भी यहाँ 1 महीना गुजारा हमारे साथ भी, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईन पाकिस्तान बना है, आईन पाकिस्तान उस माहौल में बना है जब बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई थी, जब मेरे वालिद साहब ने सूबा सरहद की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी वजारत उलिया से इस्तीफ़ा दिया था, उस माहौल में भी मिलकर आइन बनाया गया। इख्तिलाफ राय फिर भी बरकरार रहा, लेकिन आइन बन गया। 18वीं तरमीम भी जो हमने पास की है तो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठी रही, हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तिलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझकर, क्योंकि आइन जो है वो कौम का होता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी होता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लिए भी होता है। तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फैसला किया है तो मैं समझता हूं कि वो हक पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि एक इत्तिफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़्फ़ुज़ रह गया है तो उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफाहमत का वक्त है, बिल पेश नहीं हुआ, हम मुफाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे और तरामीम भी इंशाल्लाह हम इत्तिफाक राय के साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत मौलाना साहब एक से नुक्ता क्लियर कर दें, एक नुक्ता क्लियर कर दें। आपका जो मसवदा है यार, एक मिनट, जो आपका मसवदा था पीपल्स पार्टी और JUI का, जो ये मसवदा हमारे पास मौजूद है, इसमें 175(3) जो था उसको नहीं छेड़ा गया, उसमें कोई तरमीम नहीं दी गई, जिसका मतलब ये था कि 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जो अभी हुकूमती मसवदा आया है काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है, उसमें 3 बेंच जो है, 3 जो सीनियर हैं उनमें से चुनाव किया जाएगा। क्या आप लोगों ने उनकी ये बात मान ली है या अभी उस पर तरमीम देंगे? देखिए, ये तो मैंने अपनी तकरीर में जो पहले असम्बली में मैंने इनिशिएट किया था कि आप आईनी तरमीम को जजों की शख्सियात के बीच में या रमाल क्यों बना रहे हैं।
जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा के लिए हम तरमीम कर रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे के लिए हम तरमीम कर रहे हैं। ये तो आईनी तरमीम की तौहीन है। शख्सियात को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? आज शख्सियत है, कल नहीं है, जिंदा है, फौत हो गया, बीमार हो गया, बहुत सी चीज़ें होती है। तो सीनियरिटी भी एक वजह है, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन कारकर्दगी भी एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, फिटनेस भी एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। इसलिए हमने ये कहा था कि अगर 2-3 पैनल जो है वो उसका बन के उनमें से कारकर्दगी के हवाले से भी सीनियरिटी के हर हवाले से देखा जाए और उसको पिक किया जाए तो शायद एक सेहतमंद रिवायत का आगाज हो जाएगा। आप इस नतीजे पर पहुंचे जी, एक बात मैं अर्ज करूँ आपसे, हम पैकेज पे मुत्तफिक, पैकेज पे हमने इत्तेफाक किया। जुज़ियात पर अगर हमें कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम अब भी तरामीम पेश कर सकते हैं। मौलाना साहब, आपने जो कहा, आपने जो फरमाया कि जहर निकाल दिया गया, तो वो जहर क्या है? ये लंबी बात है, फिर एक महीना गुजारा है, जरा खुदा का खौफ करें। तरमीम के बाद तरमीम देंगे फिर सर जी, आपने कहा ना जिन जुजियात पे इख्तलाफ होगा हम तरमीम देंगे, तो इस 175(3) पे तरमीम देंगे। 175(3) मैं आपसे कहा कि जो मुझसे एक शिक्कों की बात न किया करो। हमने एक पेश की, जहां पर हमें इख्तिलाफ राय होगा, 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहां पर हम बात करने की गुंजाइश है, तो हम तरमीम पेश पॉजिटिव खबर रेडी है? खामोशी खामोशी प्लीज, रेडी है खामोशी सारे? ओके। बस ओके। अच्छा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे अलायंस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और अल्लामा राजा नासिर साहब, हम मौलाना साहब के घर पे आए थे। हमारे मुलाकातों का ये सिलसिला आपको मालूम है बड़े अरसा से शुरू है। आईन में जो तरामीम करने जा रही है उसके सिलसिले में हम सारे मौलाना साहब के रोल का, जिस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया इस सारे प्रोसेस में, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमें एकमोडेट किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमारे दर्द दुख को अपना समझ करके रोल प्ले किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से मैं और हमारे सारे वर्कर सपोर्टर मौलाना साहब के इस रोल के बेहद हम मशकूर हैं। आईन में तरामीम एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस संजीदे मसले को अच्छी तरीके से समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि हमारे चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब है, जो पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी इंशाअल्लाह चेयरमैन रहेंगे। हमने हर फैसला, चाहे उसकी इब्तिदा करना हो, चाहे उसका इंतहा करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं, उनके रजामंदी के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमने हुकूमत मुसव्वदे पे गौर किया है। हमने ये कहा था कि खान साहब ने जो कल डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में खान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लियामान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूंगा, हम और मजीद कंसल्टेशन करेंगे, तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौक़िफ़ देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया,
जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। हमने मुतालबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पे कोई वर्शन हो, हमारे मनेज और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाएं। आज मौलाना साहब के साथ इस सिलसिले में हमारा एक तवील नशिस्त रहा है। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाअल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जहां तक आज 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतकद हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौके स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे। लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मोतकद हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी यह ताल्लुक इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, यही हमारा फैसला है। जी प्लीज। मैं अपनी बात भी करूंगा और गौहर खान साहब की उर्दू जो है ना जी, वो जरा उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर सकूंगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहां तक उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुंचे हैं। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी पीटीआई से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते, तो मैं भी तस्लीम करता हूं कि ये उनका हक बनता है। लेकिन चूंकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है, और जाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा, आपने भी यहाँ 1 महीना गुजारा हमारे साथ भी, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है, और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईन पाकिस्तान बना है, आईन पाकिस्तान उस माहौल में बना है जब बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई थी, जब मेरे वालिद साहब ने सूबा सरहद की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी वजारत उलिया से इस्तीफ़ा दिया था, उस माहौल में भी मिलकर आईन बनाया गया। इख्तिलाफ राय फिर भी बरकरार रहा, लेकिन आईन बन गया। 18वीं तरमीम भी जो हमने पास की है, तो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठी रही। हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तिलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझकर, क्योंकि आईन जो है वो कौम का होता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी होता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लिए भी होता है। तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम
किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फैसला किया है तो मैं समझता हूं कि वो हक पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एक इत्तिफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़्फ़ुज़ रह गया है तो उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफाहमत का वक्त है, बिल पेश नहीं हुआ, हम मुफाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे और तरामीम भी इंशाल्लाह हम इत्तिफाक राय के साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब एक सिर्फ नुक्ता क्लियर कर दें, एक नुक्ता क्लियर कर दें। आपका जो मसवदा है, यार एक मिनट, जो आपका मसवदा था पीपल्स पार्टी और JUI का जो ये मसवदा हमारे पास मौजूद है, इसमें 175(3) जो था उसको नहीं छेड़ा गया, उसमें कोई तरमीम नहीं दी गई, जिसका मतलब ये था कि 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जो अभी अभी हुकूमती मसवदा आया है, काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है, उसमें 3 बेंच जो है, 3 जो सीनियर हैं उनमें से चुनाव किया जाएगा। क्या आप लोगों ने उनकी ये बात मान लिया या अभी उस पर तरमीम देंगे? देखिए, ये तो मैंने अपनी तकरीर में जो असम्बली में मैंने इनिशिएट किया था कि आप आईनी तरमीम को जजों की शख्सियात के बीच में यारगमाल क्यों बना रहे हैं। जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा के लिए हम तरमीम कर रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे के लिए हम तरमीम कर रहे हैं। ये तो आईनी तरमीम की तौहीन है। शख्सियात को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? आज शख्सियत है, कल नहीं है, जिंदा है, फौत हो गया, बीमार हो गया, बहुत सी चीज़ें होती है। तो सीनियरिटी भी एक वजह है, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन कारकर्दगी भी एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, फिटनेस भी एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। इसलिए हमने ये कहा था कि अगर 2-3 पैनल जो है उसका बन के उनमें से कारकर्दगी के हवाले से भी सीनियरिटी के हर हवाले से देखा जाए और उसको पिक किया जाए तो शायद एक सेहतमंद रिवायत का आगाज हो जाएगा। जी, एक बात मैं अर्ज करूँ आपसे, हम पैकेज पे मुत्तफिक हैं, पैकेज पे हमने इत्तिफाक किया। जुज़ियात पर अगर हमें कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम अब भी तरामीम पेश कर सकते हैं। मौलाना साहब, आपने जो कहा, आपने जो फरमाया कि जहर निकाल दिया गया, तो वो जहर क्या है? ये लंबी बात है, एक महीना गुजारा है, जरा खुदा का खौफ करें। तरमीम देंगे फिर सर जी? आपने कहा ना जिन जुजियात पे इख्तलाफ होगा हम तरमीम देंगे, तो इस 175(3) पे तरमीम देंगे। 175(3) को मैं आपसे कहा कि जो मुझसे एक शिक्कों की बात मैं क्या करूं। हमने एक पेश की, जहां पर हमें इख्तिलाफ राय होगा, 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहां पर हम बात करने की गुंजाइश है तो हम तरमीम पेश करेंगे। थैंक यू। मैं चला जाऊँ? हाँ, आप जाए ना, आप क्यों साहब ने कहा कि जरा दोबारा फोन किया, कौन हो? ये मुझे दोनों माइक मुझे दे जरा के आपके चेहरों पे हकीकी मुस्कुराहट नजर आ रही है बिलावल जैसी। چې دا کنه ماته پرونه لغوي کنه و چې ټول لارې کې بيسي ده دکانه ماره پلیز باقي سنو चलो भाई शुरू कर लो। पीछे यार, पीछे अगर भाई थोड़ा सा इधर हो जाए, कैमरे में नहीं आ रहे प्लीज। ठीक है जी, تاسو به کوی مو صحیح والله پوزټیو خبره او هغه به کوم ټول रेडी है? खामोशी प्लीज। रेडी है?
खामोशी। सारे ओके। बस ठहर ही नहीं रहा यार ये। ओके। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे अलायंस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और अल्लामा राजा नासिर साहब, हम मौलाना साहब के घर पे आए थे। हमारे मुलाकातों का ये सिलसिला आपको मालूम है बड़े अरसा से शुरू है। आईन में जो तरामीम करने जा रही है उसके सिलसिले में हम सारे मौलाना साहब के रोल का, जिस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया इस सारे प्रोसेस में, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमें एकमोडेट किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमारे दर्द दुख को अपना समझ करके रोल प्ले किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से मैं और हमारे सारे वर्कर सपोर्टर मौलाना साहब के इस रोल के बेहद हम मशकूर हैं। आईन में तरामीम एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस संजीदे मसले को अच्छी तरीके से समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि हमारे चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब है, जो पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी इंशाअल्लाह चेयरमैन रहेंगे। हमने हर फैसला, चाहे उसकी इब्तिदा करना हो चाहे उसका इंतहा करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं, उनके रजामंदी के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमने हुकूमत मुसव्वदे पे गौर किया है। हमने ये कहा था कि खान साहब ने जो कल डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में खान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लियामान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूंगा, हम और मजीद कंसल्टेशन करेंगे, तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौक़िफ़ देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। हमने मुतालिबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पे कोई वर्शन हो, हमारे मनेज और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाएं। आज मौलाना साहब के साथ इस सिलसिले में हमारा एक तवील नशिस्त रहा है। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाअल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जहां तक आज 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौक़िफ़ स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे। लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मोतक़द हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ
ہمارا فیوچر میں بھی یہ تعلق انشاءاللہ تعالی ایسا ہی رہے گا. لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے یہی ہمارا فیصلہ ہے. جی پلیز. میں اپنی بات بھی کروں گا اور گوہر خان صاحب کی اردو جو ہے نا جی وہ ذرا اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر سکوں گا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کا. جہاں تک انہوں نے ترمیمی بل اور پھر اس کے اندر ترامیم، اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سراہا ہے اور جس حتمی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں. اب اس وقت ہر چند کے کسی درجے میں کوئی تحفظ تو رہ ہی جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے. اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے. متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں، جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالت زار انہوں نے ہمیں بتائی، اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں، جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن چونکہ بنیادی مسودے پر اختلاف نہیں ہے، اور ظاہر ہے جی کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا. آپ نے بھی یہاں 1 مہینہ گزارا ہمارے ساتھ بھی. آپ نے بھی رات 3 بجے تک یہاں پر ہمیں کور کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے. آئین پاکستان بنا ہے. آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی تھی، جب میرے والد صاحب نے صوبہ سرحد کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کی وزارت علیہ سے استعفیٰ دیا تھا، اس ماحول میں بھی مل کر آئین بنایا گیا. اختلاف رائے پھر بھی برقرار رہا لیکن آئین بن گیا. 18ویں ترمیم بھی جو ہم نے پاس کی ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھی رہی. ہر چند کے تعلقات میں شدت بھی تھی، اختلاف رائے بھی تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک سنجیدہ کارروائی سمجھ کر، کیونکہ آئین جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے، وہ حزب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ حزب اقتدار کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ہم نے مل کر ایک محنت کی ہے، ایک کوشش کی ہے، لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے، اس پہ ہم کسی پارٹی پہ جبر نہیں کر سکتے. وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اگر اس سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے اور اس میں وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں. لیکن اب چونکہ ایک اتفاق رائے ملکی سطح پر ہو رہا ہے، ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے، اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امینڈمنٹس دیں گے. ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے، بل پیش نہیں ہوا، ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے. نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے، اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. مولانا صاحب ایک نقطہ کلیئر کر دیں، آپ کا جو مسودہ ہے، یار 1 منٹ، جو آپ کا مسودہ تھا پیپلز پارٹی اور JUI کا، جو یہ مسودہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں 175(3) جو تھا اس کو نہیں چھیڑا گیا، اس میں کوئی ترمیم نہیں دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق سینئر موسٹ جو جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. جو ابھی حکومتی مسودہ آیا ہے کابینہ نے جس کی منظوری دی ہے، اس میں 3 بینچ جو ہے، 3 جو سینئر ہیں ان میں سے چناؤ کیا جائے گا. کیا آپ لوگوں نے ان کی یہ بات مان لی ہے یا ابھی اس پہ ترمیم دیں گے؟ دیکھیے، یہ تو میں نے اپنی تقریر میں جو اسمبلی میں نے انیشیٹ کیا تھا کہ آپ آئینی ترمیم کو ججوں کی شخصیات کے بیچ میں یا رغمال کیوں بنا رہے ہیں؟ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں. یہ تو آئینی ترمیم کی توہین ہے. شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں؟ آج شخصیت ہے، کل نہیں ہے، زندہ ہے، فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو سینیئرٹی بھی ایک وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کارکردگی بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے.
फिटनेस भी एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ हैं। इसलिए हमने ये कहा था कि अगर 2-3 पैनल जो है उसका बन के उनमें से कारकर्दगी के हवाले से भी, सीनियरिटी के हर हवाले से देखा जाए और उसको पिक किया जाए तो शायद एक सेहतमंद रिवायत का आगाज हो जाएगा। आप इस नतीजे पर पहुंचे जी, एक बात मैं अर्ज करूँ आपसे, हम पैकेज पे मुत्तफिक हैं, पैकेज पे हमने इत्तेफाक किया। जुजियात पर अगर हमें कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम अब भी तरामीम पेश कर सकते हैं। मौलाना साहब, आपने जो कहा, आपने जो फरमाया कि जहर निकाल दिया गया, तो वो जहर क्या है? ये लंबी बात है, एक महीना गुजारा है, जरा खुदा का खौफ करें। तरमीम देंगे फिर सर जी, आपने कहा ना जिन जुजियात पे इख्तलाफ होगा हम तरमीम देंगे, तो इस 175(3) पे तरमीम देंगे। 175(3) को मैं आपसे कहा कि जो मुझसे एक शिक्कों की बात मैं क्या करूं। हमने एक पेश की, जहां पर हमें इख्तिलाफ राय होगा, 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहां पर हम बात करने की गुंजाइश है, तो हम तरमीम पेश करेंगे। के बाद थैंक यू। मैं चला जाऊँ? हाँ, आप जाए ना, आप क्यों साहब ने कहा कि इधर आओ। दोबारा फोन किया, कहते आ जाओ। ये मुझे दोनों माइक मुझे दे जरा के भी कंटारे छे आपके चेहरों पे हकीकी मुस्कुराहट नजर आ रही है बिलावल जैसी। راسي ذكر عماتهم قالوا لنا غوي كنا وجدوا له لارك بيسي ده دكانا مارے پلیز یہ سنو چلو بھائی شروع کر لو۔ تھوڑا سا ادھر ہو جائے سر، کیمرے میں نہیں آ رہے پلیز۔ عقبكم طولي بسم اللہ، بس ریڈی ہیں؟ خاموشی پلیز، ریڈی ہیں خاموشی سارے؟ اوکے بس اوکے اچھا سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان تحریک انصاف، ہمارے الائنس سنی اتحاد کونسل اور علامہ راجہ ناصر صاحب، ہم مولانا صاحب کے گھر پہ آئے تھے۔ ہمارے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے بڑے عرصہ سے شروع ہے۔ آئین میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس کے سلسلے میں ہم سارے مولانا صاحب کے رول کا، جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا اس سارے پروسیس میں، جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمیں ایکوموڈیٹ کیا ہے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمارے درد دکھ کو اپنا سمجھ کر کے رول پلے کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے میں اور ہمارے سارے ورکر سپورٹر مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں۔ آئین میں ترامیم ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سنجیدہ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ بات واضح کر چکی ہے کہ ہمارے چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب ہے، جو پہلے بھی چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہیں،
कल भी इंशाअल्लाह चेयरमैन रहेंगे।